class we are going to continue जो हमारा डिस्कशन था लास्ट टाइम Fraunhofer डिफ्रैक्शन का in some sense. So what we are going to do in today's class is we are going to study diffraction at straight edge. Diffraction at straight edge. 1 second. Diffraction at straight edge. So this is the point which we are going to study in your so we are going to use the same जो हमारा जो last discussion था ना, we are using primary and Huygens Fresnel's theory of primary and secondary wavelets. They interfere and we are observing a screen diffraction pattern on the screen, which includes the first bright maxima, फिर second bright maxima and so on and so forth. ठीक है? And only Fraunhofer and Fresnel's diffraction में सिर्फ इतना फर्क था कि वहाँ source was at infinite and here source is at a finite distance from the screen. So that's it. And in your previous things we also calculated the intensity pattern क्या आ रहा था. अब इसमें last class में सिर्फ we had studied the half period zones, Fresnel's ये diffraction in terms of half period zones. And हमने उस series को जो intensity है ना U, we summed that intensity U naught plus U for both things, even and odd series, and we got that intensity pattern. And हमारा कल का result था कि जो first intensity pattern था, it contributed maximum to it. So we are going to do the same analysis here कि हम यहाँ से for example इसको अगर यहाँ से ऐसे हम एक circular aperture लेंगे and we'll take some screen. So we are going to use this diagram throughout. We are going to use this diagram. तो ऐसे ऐसे. So this is screen. ये तो screen है. तो यहाँ पर E is the screen. तो यहाँ से है. तो ये है wave front. तो यहाँ से for example there is another wave जिस तरह वहाँ हम कर रहे थे. तो different wave fronts आ रही थी from different points. जब लेंस के साथ diffract या interfere करते थे वो different phase path length different हो जाता था, which gave rise to different जो interference pattern था, जो path difference was one of the factor. So in the same way जो ये हमारे पास wave front है, if the source is this is the source, this यहाँ से यहाँ तक हम distance को रखेंगे a के साथ, we denote it from source to this aperture. The distance is denoted by this A, and from this to this it is denoted by B. So आप इसको A के साथ represent कर सकते हैं. So from this to this आप अगर यहाँ से यहाँ ये आएगा, it's going to diffract from this aperture. ये distance m रखो आप. And you can have this Q, and these are the different points on this aperture. ठीक है, अब aperture तो same है, मगर हमारा मसला है कि if we draw a parallel here ऐसे, तो that sort of that, तो यहाँ से हम diffraction को observe करेंगे as if it's a straight edge. Even though जो wave front का form होगा, it will be circular ऐसे. Those wave fronts will, when they diffract from a edge, straight edge, आप ये ले सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, जिस perpendicular to it. तो उसके हिसाब से हमारा wave front का जो shape है वो circular है और cylindrical है, जो भी है, but इसका ऐसे shape, oval shape आएगा. So because it travels like that, and its primary and secondary wavelets they interfere. But here we are taking the straight edge. हम एक parallel perpendicular यहाँ से डालते हैं, तो it means as if we are seeing the diffraction is taking place from a straight edge. तो यहाँ से तो यहाँ तक तो ठीक है diagrammatically. So you have any कोई question तो नहीं, कोई clarification? ठीक है? Hello? हाँ, if there is clarification I can clear it diagrammatically. तो अब इसमें ये है कि
now what we are going to do is basically so now we are going to do, for example, from the geometry. So ये है कि जो screen will be there will be no intensity variation along the direction parallel to the length of the slit. That's fine. अब यहाँ पर हम करेंगे काम. For example, अगर हम लेंगे let, for example, G Q M G G Q, तो ये हाँ इसको हम G प्राइम के साथ रिप्रेजेंट करेंगे. विल रिप्रेजेंट दिस बाय G. सो अगर हमारे पास ये सर्कुलर अपर्चर है G Q G Q M M तो ये है, G प्राइम ये है, M G prime, if it represents सेक्शन ऑफ वेव फ्रंट. अगर हम इस एक वेव फ्रंट का एक सेक्शन लेंगे जी ऐसे, तो इसका एक सेक्शन लेंगे जो द पॉइंट Q which is joining this thing joins S and P. हाँ, P is a point जो स्क्रीन पे है. ये है P है एक पॉइंट. सो इट्स स्ट्रेट. सो एट डिफरेंट पॉइंट्स इन स्क्रीन, जब यहाँ से लाइट वेव फ्रंट्स आएंगे एट दे विल बी डिफ्रैक्टेड फ्रॉम द स्ट्रेट एज, एंड उसका इंप्रेशन हमको डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द स्क्रीन पे आएगा. ठीक है. बट सिंस इसका सर्कुलर फॉर्म है, आप देखो इसका यहाँ से अगर कोई चीज डिफ्रैक्ट होगी यहाँ से, तो थोड़ा सा डिस्टेंस यहाँ से ये ज्यादा है, ये कम है कंसेक्यूटिवली. सो फ्रॉम इट विल गो फ्रॉम असेंडिंग टू डिसेंडिंग. ठीक है. यहाँ से कम होते जाएगी, यहाँ से ज्यादा होते जाएगी. सो यू स्टार्ट, इट्स द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, इन द सेम इट्स लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट. सो जो थोड़ा सा एडिशनल डिस्टेंस है दैट विल कॉरस्पॉन्ड टू द पाथ डिफरेंस जो होगा, एंड दैट पाथ डिफरेंस मे बी इंटीग्रल और हाफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ्स. उसका हाउ वी कैन प्रपोर्शनल गिव अस इंटेंसिटी पैटर्न, हम कैसे स्क्रीन पे डिफरेंट मैक्सिमास हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे ऑन स्क्रीन. अब ये है कि फॉर एग्जांपल इफ वी वांट टू सी इट, फॉर एग्जांपल SQ1 जो हमारे पास है, SQ1 प्लस Q1P. देखो SQ1 प्लस Q1P, SQ1 प्लस Q1P माइनस SQ1 माइनस S2 है ना. फॉर एग्जाम्पल कोई भी रे यहाँ से यहाँ तक आएगी, SQ1 माइनस. सो इट्स द स्ट्रेटेस्ट पॉइंट. दिस फॉर एग्जाम्पल यहाँ से यहाँ तक वी कैन हैव, दिस इज द स्ट्रेटेस्ट पॉइंट. बट इफ यू इट गोज फ्रॉम दिस टू दिस, इट कैन ऑल्सो गो फ्रॉम दिस टू दिस, इट कैन गो फ्रॉम दिस टू दिस. बट अब यह है कि वी आर गोइंग टू टेक the path difference between 2 points अगर हम लेंगे. so for example this going from SQ1 plus Q1P, तो ये तो एक path है, but the other path is straightest path, so it will correspond to SQP. so if it's the half integral multiple of wavelengths. इस तरह SQ2 दूसरा, ये Q1 का है. अब Q2 कर लेंगे, Q2P माइनस SQP. ये तो फर्स्ट वेवलेंथ का आएगा, देन इट विल बी 2 लैम्डा बाय 2. इसी तरह अगर Q3 आएगा, SQ3 प्लस Q3P माइनस SQP इज 3 लैम्डा बाय 2. सो यू कैन हैव इंक्रीजिंग नंबर ऑफ वेवलेंथ्स एंड इंक्रीजिंग जो पाथ डिफरेंस है, whatever that may be. So we are going to have that increasing or decreasing path difference is an half integral multiple of wavelengths where n corresponds to different integers. अब यह है कि अब corresponding to first, अब इसमें सिर्फ ये फर्क है कि जैसे unlike functions half period zones, जो पिछले वाले एनालिसिस हमने किया था, जो फ्रेंसेल्स हाफ पीरियड जोन्स में जो था, वहाँ एरियाज जो है ना कंसेक्यूटिव, दैट वेयर सपोजिडली इक्वल, दोज वेयर इक्वल, तो हमारे पास फॉर्मूला था. मगर यहाँ मसला ये है कि
दे विल नॉट बी दैट इक्वल. सो इससे थोड़ा सा हमारा एनालिसिस थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा. चलो वो लीव दैट माइनर पॉइंट अगेन. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि जो हमारा इसका फर्स्ट इंटेंसिटी पैटर्न है, फॉर एग्जांपल ज्योमेट्रिकल जो कल की तरह हम देखेंगे. सो इट विल, जो हमने कल सीरीज की थी, ठीक है, इट वाज u1 प्लस माइनस u2 प्लस u3 माइनस u4 प्लस ऐसे करते करते फिर हमने ऑड सीरीज और इवन सीरीज को ऐड करके, सो एट द एंड वी गॉट u नॉट बाई 2. सो यू कैन इन द सेम वे वी कैन हैव this first intensity pattern, it will be 1 by 2 u naught. एंड अगर हम दूसरा अब लेंगे, फॉर एग्जाम्पल एस एम, अब ये वाला पाथ लेंगे एस एम प्लस एम पी माइनस एस क्यू पी माइनस एस क्यू पी. ठीक है, पहले हमने ये वाला पाथ लिया ऊपर से, अब नीचे वाले का पाथ लेंगे एस एम प्लस एम पी, पहले ऊपर वाले का लेंगे. सो it will again come out to be lambda by 2. अब यह है कि this is the first half period strip, this is the second half period, and consecutively different half period strips. जिस तरह हमारे पास वो circular पेज जो था वो half period zones, they were consecutive patches, circles आते थे, which were corresponding to different area spots, the dark spot, वो bright, फिर ये तो वो concentric circles आते थे हमारे पास, which corresponded to bright, और जैसे ऐसे ऐसे आ रहे थे कल वाले में. अब इसी में हमारे अब what are the consecutive जो patterns, ये अगर एक वाला लिया ये दूसरा वाला लिया, ठीक है, तो हम we have to see उनको बेसिकली उसका जो नेट कंट्रीब्यूशन वो हैव टू. सो जो स्क्रीन पे हमारा आ रहा था ये द थिंग विच इज कमिंग आउट हियर. सो एट द एंड वी गॉट दिस फैक्टर, दिस x इज इक्वल टू दिस 2n प्लस 1 b ऑफ a प्लस 1. तो ये आ गया हमारे पास. सो इफ इट कम्स लाइक दैट, सो जो x पे जो स्क्रीन पे हमारा जो ब्राइट मैक्सिमा और मिनिमा हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इसका वैल्यू आएगा, x का वैल्यू इसके बराबर आएगा. तो एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन सीन कि it has been seen that for example के लिए if you want to write if you want to give different values of, for example, first maxima की different values अगर आप करेंगे, for example at 0.5 centimeters above the edge of the shadow. सो द सेकेंड एंड थर्ड मैक्सिमा अगर हम इसको ये x का वैल्यू ये रखेंगे, तो जो थर्ड एंड जो मैक्सिमा आएगा इट विल बी 0.80866 एंड 0.112 सेंटीमीटर्स. सो यू कैन इंटरेस्टिंगली सी, अगर हम इसका वैल्यू यहाँ पर ये रखेंगे, एज पे रखेंगे, तो फर्स्ट ब्राइट मैक्सिमा यहाँ आप ऑब्जर्व करेंगे फ्रॉम द स्क्रीन 0.8 सेंटीमीटर्स, दूसरा ब्राइट मैक्सिमा 0. सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. आप एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं कहाँ पर आपका फर्स्ट ब्राइट मैक्सिमा आएगा, सेकंड ब्राइट मैक्सिमा आएगा फॉर दिस ऑड नंबर ऑफ थिंग्स. यू कैन डू द सेम थिंग फॉर, अगर आप इवन वैल्यू के लिए करना चाहते हैं, इवन वैल्यू के लिए भी आप x विल बी देन इक्वल टू a प्लस b बाई a इंटू लैम्डा 2, 3, and this first maxima will be this, so on and so forth. So by determining the different by determining the positions of these maxima and minima, हम ये different positions maxima और minima को determine करने के बाद we can also calculate the wavelength of a given light. So अगर हमारे पास maximum और minimum for a given setting, experimental setting पता होती है, we can incoming wavelength भी हम निकाल सकते हैं. या अगर हमारे पास incoming wavelength पता होगी, ये screen की distance पता होगी, we can find the first bright maxima कहाँ पर आएगा, second bright maxima, so on and so forth. So these calculations you have done in Young's double slit experiment or other जो पिछली वाले things, first for now for Francis diffraction में भी you can स्क्रीन से इसका डिस्टेंस क्या है, वेवलेंथ क्या है, फ्रिंज कहाँ कहाँ बनेगा, तो
यू मैनिपुलेट एक दो पैरामीटर्स आपके पास है तो तीसरा यू कैन फाइंड, दो पता है तो यू कैन फाइंड, स्क्रीन की डिस्टेंस पता है तो, वेवलेंथ पता है तो ये कहाँ ये पता चलेगा, वेवलेंथ पता है ये पता है एज पे तो यू कैन फाइंड फर्स्ट एंड सेकंड ब्राइट मैक्सिमा कहाँ पर है. सो यू कैन डू दीज कैलकुलेशंस ऑन एंड ऑफ इन द एंटायर स्कीम. अब हमारे पास ये है कि जो डिफ्रैक्शन है हमारे पास, ये तो नॉर्मल एज जो हमने वहां पर अप्रोक्सीमेशन की थी ना कि मतलब हाफ पीरियड जोन्स का जो हमने फ्रांसिस हाफ पीरियड जोन्स उसका एरिया इक्वल आता था, तो यहाँ पर वो विल नॉट एज्यूमिंग दैट थिंग. तो इसका ये है कि डिफ्रैक्शन बाय स्ट्रेट एजेस जो है इसका एक और एनालिसिस भी है, एक थोड़ा सा रिगरस एनालिसिस है. चलो आपके सिलेबस में नहीं है मे बी, बट स्टिल आई से कि यूजिंग फ्रांसिस इंटीग्रल्स, उसका अपना एक टेबल होता है. अगर आप गो एंड सी द ऑप्टिक्स बुक्स तो यू सी कि फ्रांसिस इंटीग्रल्स एंड कॉर्नर स्पाइरल एक मेथड है अपना, हाउ वी कैन आल्सो कैलकुलेट diffraction at a straight edge by rigorous method. So if we have time to we'll just at the end try to see that thing also. So here I'll stop. तो किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? हेलो No, sir. हाँ, अब इसमें ये मसला है फ्रॉम चलो इसमें आपका ये जो यूनिट है ना, आई हैव जस्ट डिफ्रैक्शन तक ऑलमोस्ट आई हैव डन इट. नाउ पोलराइजेशन. सो बिफोर आई एम गोइंग टू स्टार्ट पोलराइजेशन मे बी आई जस्ट मैं थोड़ा बैक जाता हूँ, आई जस्ट स्टार्ट ऑप्टिक्स से. सो टुमारो आई जस्ट आप बाकी स्टूडेंट्स को भी कहो यू मेंटेन द रेगुलर क्लास. कल का क्लास इंपॉर्टेंट है. आई गिव ए जनरल ओवरव्यू ऑफ ऑप्टिक्स क्या है, ठीक है. हाउ तो कल से हम नॉर्मल हम विल ट्राई टू सी जो, क्योंकि आई स्टार्ट विद थर्ड, आई जस्ट स्टार्ट कि मैं क्या कौन सा टॉपिक स्टार्ट करूंगा. सो अकॉर्डिंगली सो दैट देयर शुड बी सम सीक्वेंस, आई विल बी फॉलोइंग सम सीक्वेंस आल्सो, ठीक है. सो आई जस्ट टुमारो स्टार्ट फ्रॉम ऑप्टिक्स फर्स्ट, हाउ द सब्जेक्ट हैज इवॉल्व्ड, ठीक है. मे बी सेकंड यूनिट या फर्स्ट यूनिट, आई सी. सो कल आप बाकी को भी कहना यू जस्ट अटेंड द क्लास. कोई अगर कुछ चीज समझ नहीं आई तो यू कैन आस्क मी. सो इफ आई समराइज, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ ये लिया कि जो डिफरेंट वेव फ्रंट्स यहाँ अगर स्ट्रेट एज लेंगे, डिफरेंट वेव फ्रंट्स जो हैं व्हेन दे आर गोइंग टू इंटरफेयर एंड सी वी सी देयर इफेक्ट्स ऑन द स्क्रीन, डिफरेंट वेवलेंथ्स का जो पावर डिफरेंस है मतलब उसको हमने सबट्रैक्ट करके क्या एडिशनल पावर डिफरेंस आ गया, एंड वी दैट शुड बी इधर इंटीग्रल और हाफ इंटीग्रल नंबर ऑफ लैम्डा बाय 2. तो उस हिसाब से हमने ब्राइट एंड मैक्सिमास को, डिफरेंट ब्राइट मैक्सिमास, उसका इंटेंसिटी पैटर्न, हाउ वी ऑब्जर्व देम ऑन द स्क्रीन, एंड वी कैन मैनिपुलेट एक्सपेरिमेंटली आल्सो सम ऑफ द वैल्यूज व्हिच यू कैन सी इन द बुक्स, ठीक है. सो आई स्टॉप करूं मैं? Okay, sir. चलो ठीक. कल बाकियों को भी कहना दे शुड कम, मे बी आई जस्ट ओके.